class. So in last class we have discussed about Taylor's scientific principles of management. Otherwise you can call the scientific principles of management. There are four scientific principles of management. First one, science is not rule of thumb, harmony not discarded, and then it should be a cooperation not individualism, and last one, it should be development of each and every his or her greatest efficiency. So we have discussed completely these things in last class. So in this class we are going to discuss about what are the techniques. Okay, so what are the techniques used by the Taylor to define the scientific management. तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो भी टेलर्स ने टेक्निक्स यूज किया है उसमें क्या बताया गया है, कौन सा साइंटिफिक, ऑब्वियसली सी फर्स्ट टेलर टोल्ड दैट थिंग whatever decision, whatever the elements of management are there, it should be on scientific basis. Okay, so scientific basis पे डिसीजन लेने के लिए कौन से टेक्निक्स टेलर ने डिस्क्राइब किए, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. So first thing it is going to told by the Taylor, that is the functional foremanship. See, these things are particularly made for the production industry, production business. So we know the things, if business things are there, it may be the selling or purchasing of product, okay, otherwise services. So this is particularly made for the production of the product. So जो भी चीजें हम production industry से related है वो first functional foremanship में explain किया गया है. अभी functional foremanship means what? So workers, they should only concentrate on work and managers should only concentrate on managerial function. So the burden of planning, it is not headed by the worker, and burden of actual work, it is not headed by the manager. So what one person can't expert in all the activities, so that's why division of works, it is very important. So Taylor insists that basically there should be two kind of division. One should be a planning department and other should be a production department. See, functional foremanship में टेलर्स ने क्या एक्सप्लेन किया है, एक तो वर्कर्स क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनके क्या काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो काम मैनेजर ने उनको बताया गया है वही काम वर्कर्स को करना चाहिए. वर्कर्स प्लानिंग में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. प्लानिंग इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजर. सो मैनेजर जो भी प्लानिंग का बर्डन है वो वर्कर्स के ऊपर नहीं आता. जो भी प्लानिंग बनाई गई है, रेडीमेड प्लानिंग है, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करना, दैट इज द वर्क ऑफ वर्कर. और मैनेजर का काम क्या है, जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये काम मैनेजर करना चाहिए. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनका काम स्मूथ तरीके से होने के लिए जो भी डिवाइडेशन करना चाहिए, जो भी काम है उसका पार्ट बनाना चाहिए. बिकॉज वन रीजन, वन person can't expert, so division of work it is very important. मैनेजर प्लानिंग भी करेगा और काम भी करेगा, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि एक ही इंसान सभी चीजें में एक्सपर्ट होना, दैट इज हाईली इम्पॉसिबल. वर्कर उसका काम भी करेगा और प्लानिंग भी करेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सभी चीजें में एक्सपर्ट होगा, ऐसे हम कह नहीं सकते. सो टेलर ने क्या बताया है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम है उसका डिवाइडेशन करो, कम से कम दो पार्ट में डिवाइडेशन करो, एक तो प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिवाइडेशन करो. कम से कम दो डिपार्टमेंट में जो भी चीजें हैं वो डिवीजन ऑफ वर्क है, जो भी काम है वो दो पार्ट में डिवाइड करो. सो विद इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट व्हाट द टेलर इंसिस्ट दैट रूट क्लार्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड, टाइम एंड कॉस्ट क्लार्क एंड डिसिप्लिनरी. And within the production department, what the Taylor insists that there should be a gag boss, speed boss, repair boss, and inspector. So planning department में कौन से वर्कर होने चाहिए और production department में कौन से वर्कर होने चाहिए, that is a particularly mentioned by the Taylor. So within planning department means all of you know we are going to do a planning of the work, what to do, how to do, when to do, and by whom to do. Okay, within that also they are giving first one root clerk. Root clerk is, it is going to fix the sequence of your work. So root clerk क्या काम करता है, रूट क्लार्क का मतलब क्या है, रूट क्लार्क देते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रूट क्लार्क देते हैं.
रूट क्लास देते हैं मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ वर्क दे आर गोइंग टू प्रोवाइड। अभी एक काम करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, एक काम कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। सो कौन सा स्टेप फर्स्ट करना, कौन सा दूसरा स्टेप है, कौन सा तीसरा स्टेप है, दैट इज फिक्स्ड विद इन द रूट प्लान। सो इट इज गोइंग टू फिक्स्ड विद इन बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट। सो जो भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ द वर्क, इट इज गोइंग टू फिक्स्ड बाय द रूट प्लान फ्रॉम प्लानिंग डिपार्टमेंट। सेकंड थिंग, दैट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड प्लान। So instruction name itself indicates, so whatever the necessary instruction required to complete that work, it is going to given the instruction by the planning department through the instruction card plan. So जो भी काम आप करने वाले हो, काम करते वक्त कौन सा भी सेफ्टी प्रिकॉशन रहेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शन लेने चाहिए, वो सभी इंस्ट्रक्शन का देता है फ्रॉम प्लानिंग डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट है टाइमलाइन कॉस्ट प्लान। So whatever it is going to fix the time to perform the job and whatever cost required to perform that job, that cost sheet it is going to prepared by the this department. So time and cost प्लान का आपका मतलब क्या है, जो भी काम कर रहे हो उसके वो कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, that is also fixed by the planning department। और वो काम करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेगा, जो भी चीजें लगेगी, उनका कॉस्ट क्या है, उसका कॉस्ट शीट क्या है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट। Next, that is a disciplinary, that means ensure work performed in systematic way. So it is also another responsibility of planning department. Work is performed within the systematic way or not, we are going to check by the planning department. Next, what the production department is going to do. So within the GAN box is there. What is GAN box is, they are going to arrange the machinery and tools which is required to complete the work. So GAN box क्या करता है, जो भी चीजें वो काम करने के लिए, वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी मशीनरीज है, जो भी टूल्स लगने वाले हैं, तो वो चीजें अरेंजमेंट करके लेते हैं, दैट इज बाय द GAN box। नेक्स्ट स्पीड बॉक्स में क्या होता है, जॉब कंप्लीटेड इन अ टाइम, they are going to ensure the things whatever the time it is given by the planning department, so the job is completed within the time, they are going to ensure about job is completed within the time or not, otherwise it's speed of the job. What is the speed of the job, completing the job. Next, repair cost, so name itself indicate, so what is the working condition it is going to maintain by the repair cost। suppose कुछ तो मशीनरी में फॉल्ट है, वो रिपेयर करना है, कुछ तो टूल्स का प्रॉब्लम है, वो रिपेयर करना है, so they are going to ensure about the machineries are going to be run properly or not। Next, inspector means they are going to check the qualities of your product। so inspector क्या करता है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसकी क्वालिटी चेक करता है। मोस्टली इट इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन इंडस्ट्री। नेक्स्ट टेक्निक क्या है, फर्स्ट फंक्शनल फोरमैनशिप, मतलब ये टेक्निक्स यूज करके दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूवन, this is a scientifically proven techniques used by the insist by the tailor, you can use for the production industry। next technique क्या है, next technique it is a standardization and simplification of work, that means whatever you are going to produce the product within your organization, within your business, the particular size, type, weight and shape of that product, they should be identical। okay, that means if you produce, suppose आपका कोई भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो एक प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ सिमिलर होना चाहिए, यानी कि उसका साइज और शेप दोनों प्रोडक्ट का एक का लगे दूसरे का लगे, इट इज नॉट द थिंग। जो चीज़ें जो आपने मेजरमेंट फिक्स किया गया है उस प्रोडक्ट के लिए, उस सभी प्रोडक्ट का, सपोज आपने इंडस्ट्री में एक 1000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, तो सबका साइज सेम ही होना चाहिए, सबका टाइप सेम होना चाहिए, उनका वेट जितना है उतना ही होना चाहिए, उनका शेप कैसे उतना ही होना चाहिए, दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, मतलब वॉट एवर यू डिसाइडेड द मेजरमेंट्स फॉर योर प्रोडक्ट, दैट शुड बी मेंटेन फॉर ऑल द प्रोडक्ट, दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट, व्हेन द मशीनरीज एंड टूल्स आर आल्सो स्टैंडर्ड, but when you are going to get a standard product, when your available machineries and tools are also standard। कब आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, जब वो प्रोडक्ट बनाने वाला मशीनरी जो भी आपके पास है वो भी स्टैंडर्ड होगा, उसके फीचर्स भी स्टैंडर्ड होंगे, उसके मेजरमेंट्स भी स्टैंडर्ड होंगे,
तभी आप स्टैंडर्ड आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, ऑब्जेक्टिव्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर मैन एंड मशीन्स। सो व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क? इसका मेन एम क्या है? एक तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए मतलब उनका साइज, शेप, वेट, सो जो भी है चीज़ें वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। एक मोबाइल 5 सेंटीमीटर का हुआ, एक 10 सेंटीमीटर का हुआ, इट इज़ नॉट द थिंग। एक कंपनी के एक टाइप के, एक फीचर्स के, एक वर्जन के मोबाइल एक सिमिलर होने चाहिए ना। So whatever the measurements are prescribed, according to that only you have to produce. So that is the quality of product should be maintained. That is the main objective of that technique. And setting the performance standard for the men and machinery. So men के लिए मतलब जो भी उस बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेटअप करके देना, मशीनरी के लिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेटअप करके देना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिपार्टमेंट। यानी कि अभी इंसान है, वो काम करने वाला वर्कर है, तो उसको एक टारगेट देना कि बाबा इस दिन में आपको कम से कम 20 प्रोडक्शन करने हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू गिव। डेली तुझे 20 पीसेस प्रोडक्शन करना है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हम एम्प्लॉइज को देते हैं। और मशीनरी में इस मशीन पे कम से कम आज के दिन 100 प्रोडक्ट प्रोडक्शन होना चाहिए। दैट इज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फिक्स फॉर द मशीनरी। सो दैट इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है? फटीग स्टडी। फटीग, द मीनिंग ऑफ फटीग इट इज फीलिंग बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड। ओके, सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर? फटीग स्टडी, सी Taylor is going to did a deep study about it, so that's why they are given the fatigue study. Fatigue का मतलब क्या है? एक इंसान, हम काम करते हैं, मशीनरी भी काम करता है। ओके, इंसान को रेस्ट चाहिए, मशीनरी को भी रेस्ट चाहिए। सो रेस्ट किस लिए होता है? क्योंकि एक इंसान टायर्ड हुआ, उसको काम करने का मन नहीं, तो उसको फ्रेश होने के लिए वी हैव टू गिव अ ब्रेक। ओके, जैसा आपका कॉलेज का टाइमिंग है, मॉर्निंग 2 पीरियड होने के बाद शॉर्ट ब्रेक रहता है, फिर से 2 पीरियड होने के बाद एक लॉन्ग ब्रेक रहता है, दैट इज लंच ब्रेक, फिर से 2 पीरियड होने के बाद एक तो शॉर्ट ब्रेक, नहीं तो कॉलेज छूटता है। सो व्हाट इज दिस सीक्वेंस? शॉर्ट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक। सो एक किस लिए होता है? क्योंकि एक इंसान कंटिन्यूअली काम करता है तो उसको थकान महसूस होती है। सो वो थक के ही काम करता जाएगा तो वो इतना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो टेलर ने क्या बताया है मैनेजर को क्या करना चाहिए? फटीग स्टडी करना चाहिए, मशीनरी का भी और उनके वर्कर का भी। तो एक्चुअली मैनेजर क्या करना चाहिए? मैनेजर शुड ऑब्जर्व द थिंग्स। मैनेजर ऑब्जर्व करो कि आपके पास जो मशीनरी है वो कंटिन्यूस कितने घंटे काम कर सकती है, कितने घंटे बाद उसको रेस्ट चाहिए और कितना इंटरवल ऑफ टाइम इसको रेस्ट चाहिए। यानी कि कितने घंटे, सपोज एक मशीनरी एक कंटिन्यूअसली 4 आवर्स दैट मशीनरी कैन डू द वर्क, एंड उसके बाद वो इंजन हीट होता है, तो हीट होने के बाद उसको रेस्ट की आवश्यकता है। सो रेस्ट दिया, बट कितनी देर का? सपोज 1 आवर का रेस्ट दिया है मशीनरी को। सो हाउ मेनी टाइम्स इट रिक्वायर्ड द रेस्ट एंड व्हाट इज द इंटरवल ऑफ टाइम इट रिक्वायर्ड द रेस्ट? यानी कि कितना घंटा इस मशीनरी को रेस्ट देना चाहिए, कितने, व्हाट इज वो रेस्ट का भी टाइम पीरियड क्या है? 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है। अभी दिन भर आप काम करते हो, रात में सोते हो, तो रात में सोते हो, आपको रेस्ट चाहिए इसलिए सोते हो, बट कितने घंटे सोना चाहिए? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कितनी बार आपको रेस्ट चाहिए दिन में और कितना टाइम रेस्ट चाहिए? दैट इज फिक्स्ड विद द फटीग स्टडी। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए? जो आप वर्कर्स है, मशीनरीज है, उनको कितनी देर में दे आर गोइंग टू गेट अ टायर्ड और उसके बाद उनको रेस्ट कितने टाइम का मिलना चाहिए। जस्ट आई टोल्ड द एग्जाम्पल, आपका कॉलेज का टाइमिंग पर्टिकुलरली 2 घंटे होने के बाद उसके बाद 15 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक रहता है। दैट इज वन यू कैन कॉल वन रेस्ट टाइम इज 15 मिनट। सेकेंड रेस्ट आपका 30 मिनट्स का होता है, थर्ड रेस्ट फिर से एक बार 15 मिनट का, यानी 3 टाइम्स यू आर गोइंग टू गिवन द रेस्ट एंड टाइम इंटरवल 15 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट। सो इट इज गोइंग टू फिक्स्ड बाय द मैनेजर इन अ फटीग स्टडी। Next thing, it is a method study. What is the method study? Means what?
best way of doing the job means first you should analyze by the alternatives and find the suitable form for it, and it should be with the low cost and high quality. So method study means what? एक काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. To complete the work there are n number of alternatives. We can complete the things by doing this way. We can complete the things by doing this way. We can complete things by doing this way. So to complete one work there are n number of alternatives. Now it's the responsibility of manager choose a best alternative. How you are going to choose the best alternative? Try all the methods and from that choose which is suitable for you, and that method should be with a low cost and high quality. So मेथड स्टडी में क्या है, एक काम करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको कौन सा तो एक ही तरीका फॉलो करना चाहिए. तो कौन सा तरीका फॉलो करें वो काम करने के लिए? तो फर्स्ट कितने तरीके हैं, हाउ मेनी अल्टरनेटिव्स आर देयर, सभी तरीके ट्राई कर लो. सो उसके बाद डिसाइड कर लो कि कौन सा तरीका अच्छा हुआ है. तो वो तरीका कैसे आप चूज करना, उसमें कम से कम कॉस्ट लगा हो और क्वालिटी भी अच्छी आनी चाहिए. दैट इज द थिंग. नेक्स्ट टाइम स्टडी. टाइम स्टडी मीन्स व्हाट? टाइम एंड नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब. सो व्हाट इज टाइम स्टडी इंक्लूड? What is the time required to complete the job and how many workforce required to complete that job? It is going to be discussed within the time study. Time study में क्या बताया गया है? एक काम करने के लिए कितना देर लगता है, कितना टाइम लगता है, और वो काम करने के लिए कितने वर्कर्स चाहिए. So that is going to be fixed within the time study. The next is motion study. That means very interesting. Movement of worker while doing the job. First one productive motion and second is a non-productive motion. We have to cut down the non-productive motion. So motion study का मतलब क्या है? Movement of worker while doing the job. Okay. So movement of worker while doing the job means what? आपके बिजनेस में जो भी वर्कर्स है वो काम करते वक्त इधर से उधर से इधर मूवमेंट करते हैं. ओके, दे आर वेस्टिंग टाइम. इस बेंच से उस बेंच के पास जाना, दूसरे कलीग के पास जाना है, मशीनरीज के पास जाना है, टाइम इंटरवल छोड़ के ब्रेक को जाना है. सो दैट इज द मूवमेंट ऑफ वर्कर में भी देर. अभी हम कॉलेज में हैं तो हम टीचर्स भी इधर से उधर इस टीचर के पास उस टीचर के पास खाली से घूम रहे. सो दैट इज द मूवमेंट ऑफ योर वर्कर. सो मैनेजर को क्या करना चाहिए? वो ऑब्जर्व करना चाहिए और उसमें भी डिसाइड करना चाहिए कि काम के लिए कितना मूवमेंट हो रहा है. दैट इज द प्रोडक्टिव मोशन. एंड नॉन प्रोडक्टिव यानी काम छोड़ के बाकी दूसरे चीजों के लिए वो वर्कर्स कितना मूवमेंट कर रहे हैं. सो दैट इज अ नॉन प्रोडक्टिव मोशन. यानी कि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स है और उसमें एक वर्कर इधर से उधर उसके एक कलीग के पास, दूसरे फ्रेंड के पास इधर से उधर टाइम जा रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है. तो उसमें आप चेक कर लो कि वो काम के लिए एक दूसरे के पास जा रहा है और खाली टाइम वेस्ट करने के लिए, अदरवाइज टाइम पास करने के लिए एक दूसरे बेंच पे जा रहा है. सो काम के लिए वो मूवमेंट कर रहा है, तो दैट इज द प्रोडक्टिव मोशन. और काम छोड़ के बाकी दूसरी चीजों के लिए वो मूवमेंट कर रहा है, तो दैट इज अ नॉन प्रोडक्टिव मोशन. सो यू हैव टू फिक्स द स्ट्रेटजी लाइक दैट टू कट डाउन द नॉन प्रोडक्टिव मोशन. सो मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऐसा प्लानिंग करो, ऐसा स्ट्रेटजी करो कि वो आदमी, वो वर्कर ऐसे काम छोड़ के दूसरे काम के लिए दूसरे बेंच पे ना जाए, दूसरे मूवमेंट ना करे. सो काम के लिए मूवमेंट किया तो ठीक है, बट काम छोड़ के दूसरी चीज के लिए मूवमेंट कर रहा है तो मैनेजर शुड फिक्स द स्ट्रेटजी टू कट डाउन द नॉन प्रोडक्टिव मोशन. द नेक्स्ट वन इज the next techniques it is insisted by the Taylor, that is the work study. Okay, work study name itself indicate that means maximum production should be there with the minimum cost. So whatever you are going for the production, it should be a maximum with the minimum cost. So it includes all the study, that means time study, motion study, method study and fatigue study. So it is the addition of all the study, it is going to completed in the work study. So work study में क्या है? जो भी आप प्रोडक्शन करने वाले हो
दैट प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कम से कम प्राइस में होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट में होना चाहिए. सो एक सभी स्टडी का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द वर्क स्टडी. Last thing, that is the last technique used by the tailor, that is a different piece based system. So mostly it is suitable for the production industry because first you have to categorize the two part of your worker. One is efficient worker and non-efficient or inefficient worker. So you have to motivate to efficient worker to become more efficient, and you have to motivate to inefficient person to become a efficient. So that's why you have to use one technique, that is the payment is given according to the number of product produced per day, that is the production intensity. Okay, different piece based system में क्या बताया गया है टेलर ने, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनका दो पार्ट करो, एक इफिशिएंट वर्कर का और एक नॉन इफिशिएंट वर्कर का. और इफिशिएंट वर्कर्स को भी मोटिवेशन दे दो क्योंकि वो ज़्यादा इफिशिएंट बने, और नॉन इफिशिएंट इनइफिशिएंट वर्कर्स को भी मोटिवेशन दे दो कि वो इफिशिएंट बने. सो मोटिवेशन देने के लिए वी आर ऑलरेडी सीन देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स वी आर यूज, मे बी द फाइनेंशियल इंसेंटिव में भी देयर, मे बी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में भी देयर, हमने देखे. बट बेस्ट वे फॉर द पीस बेस्ड सिस्टम यानी कि लोगों को सैलरी जो हम देते हो किसके बेसिस पे देंगे, प्रोडक्शन बेसिस पे दे दो. इफ इट इज योर प्रोडक्शन इंडस्ट्री, so payment is given according to the number of product produced. So payment किसके बेसिस पे देना चाहिए, जितना आपने काम किया है एक दिन में उसके बेस पे आपको सैलरी देनी चाहिए. सपोज यू हैव टू फिक्स अ टारगेट, सपोज आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपने टारगेट डिसाइड किया कि कम से कम इस दिन में आपको 50 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहिए. तो जिन्होंने भी 50 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया है उनको जितना सैलरी फिक्स किया गया है उतनी देंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका सैलरी भी बढ़ेगा. दैट इज द थिंग. सो ऑटोमेटिकली जो भी इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी दे आर गोइंग टू आल्सो गेट मोटिवेटेड एंड दे आर गोइंग टू बिकम एफिशिएंट. क्योंकि एक ने ज़्यादा प्रोडक्शन किया है तो दूसरा भी देखता है उसने ज़्यादा किया है, उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी तो मैं भी ज़्यादा करूँगा. सो दैट थिंग्स इज गोइंग टू बी डेवलप टू बिकम द एफिशिएंट वर्कर. So these total 8 techniques described by the Taylor for the scientific principles of management. और एक है that is a mental revolution. वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि mental revolution क्या है, तो 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. So I hope you got the clear concept about which are the techniques used by the Taylor. That is first one is the functional forwardship. Then time study, emotion study, method study, fatigue study, standardization and simplification of work study, and different piece based system. So I hope you got the clear concept about it. Suppose still if you have any doubt, we will clarify your doubt within the live class. So thank you so much. Bye bye.